share to group. آ گیا Share to group. No, it's not going. The dream merchants share. اور ادھر بھی ایک ہو جانا چاہیے. No, I'm not online there. ہو جانا. I have no idea. اچھا انیلما آپ کے اس پہ ہوں میں. وعلیکم السلام. مجھے ذرا بتائیں, ابھی میں ٹیسٹ کر رہی تھی. آپ تو جناب بڑی جلدی آپ نے مجھے کیچ کیا ہے کہ آپ کے گروپ میں لائیو ہوں میں یا اپنے پیج پر لائیو ہوں, کیونکہ گروپ میں مجھے آپ نظر نہیں آ رہی ہیں. میں اس پر بھی دیکھنا چاہ رہی ہوں. اچھا ڈریم مرچنٹس میں ہوں. چلو گڈ. اس کا مطلب ہے پتہ نہیں پروفائل پہ ہوں یا نہیں ہوں. اچھا گروپ میں ہے, بس ٹھیک ہے. پروفائل پہ ہوں کہ نہیں ہوں. اب بات یہ ہے, اب آپ میرے پروفائل پہ چیک کریں ایک دفعہ. نہیں میوٹ اب نہیں ہوگا. جی بتائیں. You logged on from the profile, اوکے right? یا آئی ڈیڈ. Right? ہاں And then you shared with the group. یس. So you are definitely on the profile. No worries. Can Go you ahead. check on Go your ahead. Facebook? I'll check. Okay. But you Okay. go ahead. اوکے اوکے. چلیں ٹھیک ہے جی, اپنی بات شروع کرتے ہیں. یو وانٹ سو آن بوتھ. گڈ. تھینک یو سو مچ بھائی. دیٹ واز اے کنفیوژن فار می, کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسے کر رہی ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دونوں جگہوں پر جا سکتی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ پھر جناب بعد میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا ہے, 2 منٹس رہ گئے ہیں. چلیں آپ نے کہا کہ بات شروع کرتے ہیں پھر اپنی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ انیلما, سائرہ, ساری بہت حسین کاکیاں سونیا, ہماری ڈریمرز, دا ڈریم مرچنٹس. آئی ایم انیکا ناصر. ایز یو آل نو آئی ایم ہیئر ٹو شیئر مائی اون پرسنل ایکسپیرئنس آل دا وے فرام ٹورانٹو. پتہ نہیں جناب آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ سب کے اندر خوبصورت سی روشنی, محبت, پازیٹیوٹی کو میری طرف سے ہزاروں لاکھوں سلام. تھینک یو ون مور ٹائم. جی میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ایز یوزول وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں کہ کیسے میں ڈھیر ساری پریشانیوں سے, بیماریوں سے نکلی صرف اور صرف دی الٹیمیٹ ریمیڈی کی وجہ سے. قرآن پاک, سید بابا جان حسین کا یہ خوبصورت تحفہ جو میرے جیسی پتہ نہیں کتنی لاکھوں کروڑوں سسکتی کاکیاں جو اندر ہی اندر جناب مر جاتی ہیں, ان سب کے لیے بہترین تحفہ جس نے مجھے پھر سے زندگی دی. یہ دا الٹیمیٹ ریمیڈی, کیونکہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں, اب پھر سے انشاءاللہ اینڈ پر آپ کو سارا بتاتی ہوں. لیکن پتہ ہے جب میں آبویسلی سچویشن میں تھی, میری بری حالت تھی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, کہ جی تعویذ دھاگے, کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے. آج میرے ذہن میں تھا کیونکہ کالے جادو والوں نے تو جناب مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے, کاکیاں سونیاں اتنی پریشان ہو جاتی ہیں. تو آج میں نے کہا جی ذرا ان کے کالے جادو کا تو توڑ کیا جائے خیر سے, کہ سنو ذرا میری کہانی اور پتہ چلے آپ کو کہ کالا جادو کرتا کیا ہے.
मैं जनाब जब इतनी ज़्यादा बीमार थी ना, ये 2002-3 उस टाइम की ये बात है। और उस वक्त इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के घर में भी बहुत डिस्टर्बेंस, हर कोई परेशान, और कभी कहीं से तावीज़ आ रहे हैं मेरे लिए, कभी कहीं से, हर कोई कह रहा है तुम पर तो बहुत सख्त जादू हुआ और उसका तोड़ नहीं हो सकता। उस वक्त जब फिर डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि औलाद नहीं हो सकती, साथ में खैर से जी स्टैंप लग गई जब डॉक्टर्स की तरफ से कि औलाद नहीं होनी है, और साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, और इतने सवेर मुझे पैनिक अटैक्स होते थे, और फिर हस्बैंड की जॉब भी चली गई। चलो जी, सोने पे सुहागा। अब तो जनाब फिर ये काले जादू वाली बात और पक्की हो गई कि हाँ हाँ, किसी ने यकीनन रिस्क बांध दिया, किसी ने औलाद के लिए तावीज़ कुछ किया हुआ है मुझके मेरे ऊपर कि मुझे औलाद नहीं अल्लाह पाक अता कर रहे हैं। अब उस वक्त जब सूरह बकरा पढ़ पढ़ के डेली, आप सोचो कि मैं फजर से पहले मुझे सूरह बकरा पढ़नी होती थी, डेली मैं पढ़ती थी, और फिर सूरह मरियम डेली 41 दफ़ा, और जनाब नहाने के लिए पता नहीं कितने घरों के पत्ते आ रहे हैं, तो वो लेके उनसे जी पानी में वो बॉईल करके तो उनसे शावर, और तावीज़ मैंने तो कितने सारे पहने हुए थे, कोई घोल के पी रही हूँ, कोई कुछ कर रही हूँ, कोई कुछ, किसी चीज़ में भी असर नहीं हो रहा था। अब अपने अंदर तो ज़ाहिर है सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवार थी ना कि अपना मसला हल होना चाहिए, कि ये जादू का तोड़ हो जाए। हर रिश्ता, यकीन करो, हर रिश्ता ही लगता था कि ये ख़राब है। जो भी कोई मिलता था ना, लगता था इसी ने जादू किया हमारे ऊपर, यही नहीं चाहते कि मैं अपने घर में खुश रहूं। फिर जब सैयद बाबा जान सरकार के साथ मुलाकात हुई, हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह, उन्होंने इतने प्यार से सारी बात समझाई, और उन्होंने कहा कि बेटा, सूरत अल रहमान, कुरान पाक, इसको इस तरीके से जाकर अपने घर में बैठो सुकून से, मोहब्बत के साथ, और इसको दिल की धड़कन से सुनो। पूरा उन्होंने जनाब इसका मुझे प्रोसेस बताया, पूरा प्रोसीजर था जैसे किसी भी मेडिसिन लेने का होता है। अब वो पूरा प्रोसेस मैंने फॉलो किया। मुझे उन्होंने जो स्पेशली हुक्म दिया था कि इसको दिल की धड़कन से सुनना है। अब यहाँ से मेरे अंदर जनाब ऐसी वो बात चली ना कि ये दिल की बात कहाँ से आ गई। दिल की धड़कन तो बिल्कुल उससे पहले तो कभी पता ही नहीं था। एनाटॉमी का यकीनन पता था कि हाँ दिल होता है अंदर, ये नहीं पता था खैर से कि दिल की धड़कन की क्या इम्पोर्टेंस है। अल्लाह जल्ले शानहू ने हम सब के अंदर जो ये खूबसूरत सारा दिल रखा है ना, असल कहानी है ही इसी की। इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था। जब दिल के कानों से, दिल की धड़कन से सूरत अल रहमान सुनी ना, तो यकीन करो ये जो इंजन है ना हमारे जिस्मों का छोटा सारा, ये इंजन जब इसकी फ्यूलिंग पूरी हुई ना, अंदर इसका फ्यूल सारा सेट हुआ, इसकी डायरेक्शन सेट हुई, फिर ऑटो पे ही सारे जादू उतरते चले गए। जब इसकी डायरेक्शन सही हुई तो ये जो स्टीयरिंग मैंने एक अरसे से मेरा चल रहा था ना सोचों का उल्टा पुल्टा, कि कभी इधर तो कभी उधर, उसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, फिर वो सारी सोचें भी खुद ब खुद फिक्स होती गई। फिर मुझे पता चला कि वाकई इंजन का ठीक होना कितना ज़रूरी है। बस फिर यहाँ से जब ब्लड बनना शुरू हुआ, पूरी बॉडी में फैला, तो अल्लाह जल्ले शानहू का करम हुआ, मेहरबानी हुई। माशाल्लाह मैंने 7 डेज़ सूरत अल रहमान पूरा मेथड जैसे मुझे कहा गया था उस तरीके से मैंने फ़ॉलो किया, और मैंने उसको सुना, और माशाल्लाह उस वक्त तो फ़ौरन अल्लाह जल्ले शानहू के करम से यकीनन इस दी अल्टीमेट रेमेडी की वजह से मेरी जनाब वो परेशानी तो फ़ौरन ख़त्म हो गई। अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से मुझे नवाजा, बेटी हमारे यहाँ पैदा हुई। उसके बाद जनाब बेटी के बाद हस्बैंड की कुछ अरसे बाद जॉब भी हो गई, सारा कुछ सेटल हो गया। देन वी शिफ्टेड टू कनाडा, टोरंटो। अब यहाँ पर आने के बाद आहिस्ता 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 फिर वही नफ्स है ना अंदर इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि ये जो दिल की धड़कन पर गफलत के इतने पर्दे हैं ना, ये इसीलिए सुनाई नहीं देती क्योंकि नफ्स ने अपने जाल बिछाए हुए हैं। नफ्स सुनने ही नहीं देता अपने ही अंदर की आवाज़ को। तो बस फिर वो नफ्स अंदर जनाब वो डस्टिंग उसकी मैं बिल्कुल भूल गई करना, और आहिस्ता आहिस्ता वो
तहें गर्द की अपने अंदर ही बुराइयां बनकर फैलती गई। नफरत हर किसी से, घर में ही। बच्चे माशाल्लाह अल्लाह जल्ले शानहू ने 4 बच्चे दिए, 2 बेटियां 2 बेटे, घर में माशाल्लाह खूब रौनक सारा कुछ ही। लेकिन फिर भी एवं खामखा, उसके पास ऐसे है तो मेरे पास क्यों नहीं है। मियाँ जनाब ऑफिस से क्यों देर से आ रहे हैं। अब छोटी छोटी बात पर इतनी देर से वो ऑफिस से आ चुके हैं जी, अब फिर से फ़ोन पर लगे हुए हैं। तौबा है, घर आके अब वीकेंड पर अब तो मुझे कहीं बस फौरन ही जाना चाहिए ना, कहीं दूर, कहीं वर्ल्ड टूर पे निकल जाना चाहिए। अब वीकेंड पे कोई थोड़ी घर बैठता है। अब इस किस्म के छोटे छोटे इश्यूज और मेरे अंदर फिर जनाब ये बनते चले गए एक अजीब सी बदतमीज़ी। और ये खैर से फिर वही मेरे अंदर एक बात कि ये तो किसी ने जादू कर दिया। जादू ने तो जी फिर से अफेक्ट कर दिया। बस फिर ये जादू जब मैं इस पर सोचना शुरू हुई ना आहिस्ता आहिस्ता, हाँ हाँ देखा वो अटैक फिर मुझे हो गया। उस अटैक ने फिर क्या किया, पहले तो मुझे थोड़ा बहुत फ्लू वगैरह शुरू हुआ, जहाँ से मेरी पूरी बॉडी, अब सोचो ज़रा कि ये काला जादू करता क्या है। पहले नमूनिया हुआ, नमूनिया से आहिस्ता आहिस्ता जब टेस्ट सारे हो रहे थे, फिर पता चला कि ये नमूनिया की वजह से मेरे लंग्स दोनों बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब उनकी वजह से जैसे ही उसके टेस्ट हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स का ख्याल था इधर इट्स ब्लड कैंसर और इट्स अ बोन कैंसर। यहाँ टोरंटो में ही सनी ब्रुक हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह चल रहे थे, सारा कुछ वो होते होते पता चला कि नहीं, इट्स ब्रेन ट्यूमर। अब वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से अभी तो वही डायग्नोज खैर से हुआ था, तो हॉस्पिटल में थी तो मैं पैरालाइज्ड हो गई। अब सोचो ज़रा कि 4 छोटे छोटे बच्चे और माँ खैर से जी बिस्तर पे। अब फिर से मैं बिल्कुल, आप यकीन करोगे कि तकरीबन मैं 1.5 साल, 1.5 से ज़्यादा, अबाउट 18-19 months आई वॉज बेड रिटन एंड आई वॉज ऑन डायपर्स। आई कुडंट मूव माई बॉडी। मैं बिल्कुल साइड भी नहीं ले पाती थी। और जहन में चलता क्या जा रहा है, ये जादू का असर है। एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि कहीं अपनी भी कोई गलती हो सकती है, कहीं मैं अपने अंदर देखूं तो सही, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं रब के किसी फ़ैसले पर मेरे अंदर नाशुक्री तो नहीं आ गई। ये चीज़ बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इस बात का पता ही नहीं था कि कुरान पाक जो मैं डेली इतना पढ़ती जा रही हूँ, इस कुरान पाक का मकसद क्या है। अल्लाह जल्ले शानहू ने अगर जिस्म दिया है हम सबको, मुझे, आपको, सारी बहनों को, सब लोगों को, तो इसका पर्पस क्या है। ये मकसद हयात जो था वो अल्लाह जल्ले शानहू की इबादत, उसकी मार्फत और उसकी पहचान था। उसकी ज़ात से शुरू होने वाला ये सफ़र उसकी ज़ात पर ही ख़त्म होना था। दरमियान में ये तो छोटे छोटे सारे जनाब स्टेप्स थे कि पहले मैं काकी थी, फिर बीवी बन गई, फिर अम्मा बन गई, बहू बन गई, सारे रिश्ते साथ साथ। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत है, हर रिश्ता बेहतरीन है, अगर मैं उसको बेहतरीन तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ। अगर गड़बड़ अपने अंदर है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर यकीन करो बहुत सारी काकियाँ सोनियाँ ऐसी भी मिलती हैं कि वो कहती हैं जी अपनी अम्मा ही सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचो कि हम ऐसी काकियाँ, हमें जो खैर से हम बड़े आराम से अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं। मैं अपनी बात करूँगी कि मैंने तो बड़ा लेबल अपने ऊपर लगाया हुआ था कि मैं मुस्लिम काकी, लेकिन मुसलमान होने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका जो एहसास था वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। मैं समझती थी कि मुसलमान होने का मतलब है मैं सबसे सुपीरियर हूँ। देखा जी हमने तो डायरेक्ट जन्नत में जाना है। अगर चलो कोई थोड़ी बहुत कोई पूछ कुछ होगी भी तो उसके बाद जन्नत तो हमारी पक्की है ना, और कोई नहीं जन्नत में जाएगा। ये एहसास ही नहीं था कि मुसलमान होने का मतलब जिम्मेदारी है। मुसलमान होने का मतलब है कि मुझे किसी को बताना ना पड़े कि आई एम अ मुस्लिम। मेरे अंदर से इस्लाम खुशबू बनकर निकले। लेकिन जनाब खुशबू क्या खाक मेरे अंदर से आनी थी। मेरे अंदर तो इतनी नफ़रत, एक से बढ़कर एक बीमारियां। पैरालिसिस के बाद मुझे जनाब ऑटो इम्यून डिजीज़ डायग्नोस हुई, नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी। उसमें मेरा सीके एंजाइम लेवल, जो मसल एंजाइम लेवल है, वो काफ़ी हाई हो गया था।
अब इतनी ज़्यादा परेशानियां, और फिर हॉस्पिटल में ही जब मैं थी, अभी ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, तो ब्रेन ट्यूमर के बाद मैंने वहीं पर अगेन सूरत अल रहमान दी अल्टीमेट रेमेडी, बिल्कुल जैसे सैयद बाबा जान सरकार ने मुझे हुक्म दिया कि बेटे इस तरीके से इसको सुनो, मैंने बिल्कुल वैसे ही उसको सुना। जाहिर है फिर, क्योंकि पहले पता था ना कि सुनने का मकसद क्या है, कि दिल की धड़कन से सुनना है। फिर से मैंने इसको दिल की धड़कन से सुना। अल्लाह जल्ले शानहू ने अपना करम और फजल किया, आज मैं आप सबके सामने हूँ। अब ये नहीं हुआ कि मैंने वो जनाब 7 डेज पूरे हो गए तो 8वें दिन मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई कि वाह 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 जी, इट्स अ मिरेकल। नहीं, 7 दिन मैंने सुना, मेरे अंदर वो बीज मोहब्बत का, अल्लाह जल्ले शानहू की रहमत का, रब ने खुद अपनी करम नवाजी से लगाया। फिर आहिस्ता 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 उसके बाद जो मेरा काम शुरू हुआ, मुझे अपना वो काम करना था। वो काम ये था कि सूरत अल रहमान सुनने के बाद पानी उसी तरीके से जैसे हर दफ़ा सुनने के बाद पीना था, वो खैर मैं अभी आप सबको बताती हूँ। वो पानी मैंने पीते रहना था, एक बात, और दूसरा ये पैगाम आगे सारी जगहों पर फैलाना था। कोई भी अगर अपने जैसा मिलता या जो भी कोई मिलता, क्योंकि सैयद बाबा जान सरकार हसीन वो तो ये कहते हैं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई है सबसे पहले जाकर ये पैगाम उसको दो ताकि तुम्हारे अंदर बेहतरी आए। अब सोचो ज़रा कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने का इससे बड़ा और क्या तरीका हो सकता है कि ये पैगाम फिर आगे जनाब सब तक पहुंचाओ। अब वो दिल नहीं करता था, सही बता रही हूँ। बंदा जिन्होंने जादू किया हुआ, बंदा जाके कैसे उनको कहे कि जी आपने जादू किया हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सुन लो तुम भी। बड़ी मुश्किल से जाके बस सोच सोच के कि अच्छा चलो अब कहा है बड़ों ने तो कह देती हूँ। पैगाम आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू किया लोगों को। फिर अल्लाह जल्ले शानों की रहमत का ये बीज समझो कि आटों पर उसको पानी मिलता गया, अल्लाह की रहमत का। फिर एहसास होता गया कि वाकई मुसलमान होना, आखिरी शहनशाह हुजूर पुरनूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा करम है। और फिर उसके बाद आ जाओ जनाब काकी सोनी होना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। काकियों को वो हसीन शहनशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बचा कर गए। क्यों बचाया उन्होंने मुझे, आपको, हम सबको? अगर वहीं पर हम होती तो आज क्या हमारी हालत होती? कभी सोचा? एटलीस्ट मैंने नहीं कभी सोचा था। मेरा तो ख्याल है बस जी, अब मैं बैठी बड़ी अपनी तरफ से नातें पढ़ पढ़ के जी, मैं उस वक्त मदीने में होती, मैं ये करती और वो करती। यकीन करो होती ना तो मैं उस वक्त सबसे बड़ी काफिर होती, क्योंकि अकल इतनी है। मैं तो अभी भी सारी दुनिया में देख कर भी कि जो जो हालात हैं, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपनी ख्वाहिश से आगे किसी चीज़ को देखूं। उस वक्त होती तो क्या खाक मुझे समझ में आनी थी कोई बात? बिल्कुल भी नहीं। बस वो शहनशाह हसीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हमें बचा गए। और फिर उनके जाने के बाद, उनके पर्दा फरमाने के बाद, ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद, फिर वही तसलसल कुरान पाक का ये नूर, ये रोशनी जो सहाबा कराम, उसके बाद उनके बाद, उन सब के जाने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, ताबईन, तबा ताबईन, और फिर औलिया अल्लाह की सूरत में हमारे तक पहुंचा। हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह कलंदर पाक बाबा जान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, जिनको हम सारे कहते हैं काकियाँ वाली सरकार। बस ये काकियाँ वाली सरकार ने जब इस पर रिसर्च की ना, सूरत अल रहमान पर, उन्होंने फरमाया मैंने इस पर, सूरत अल रहमान पर रिसर्च करके अपने सैयद बाबा जान सरकार हसीन के सीने में ट्रांसफ़र की। अब सैयद बाबा जान सरकार इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि मेरे जैसी काकियाँ जो अंदर ही अंदर अपने घरों को जहन्नुम बना रही हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। क्योंकि फरमाते हैं सैयद बाबा जान सरकार कि हम काकियाँ अपने घरों को जन्नत या जहन्नुम बनाने की जिम्मेदार हैं।
सोचो ज़रा, अगर मैं हर वक्त घर में ये डिस्कस करती रहूं, ये बोलती रहूं, ये ब्लेम गेम करती रहूं, हाँ तुम्हारी फुफ्फो ने मुझ पर जादू किया, तुम्हारी ताई ने मुझ पर जादू किया, तुम्हारी दादी ने जादू किया, कुछ भी इस किस्म के कोई भी रिश्ते को लेबल लगा लूं, तो फिर घर का माहौल कैसा होगा? या अगर जादू नहीं तो वैसे ही उसने ये बात कर दी, उसने वो बात कर दी, तो जिम्मेदार कौन घर की खुशियों का? और ये छोटी सारी सिर्फ मेरा अपना घर, मैं तो अपने घर की बात कर रही हूँ ना, ये मेरे घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है ये पूरे के पूरे मुआशरे में फैला हुआ है, जो कि शुरू कहाँ से हो रहा है? मेरे अंदर की एक सोच, जो यहाँ पर एक सेल है, नेगेटिव सेल, जिसको कंट्रोल करना था मुझे खुद, और मैं पहुंच गई जनाब सारी दुनिया को कंट्रोल करने। हाँ हाँ जी, जादू का तोड़ बताए ना ज़रा, मुझे बस हिसाब लगवाना है आपसे। अब कितनी मुझे काकियाँ खैर से मैसेज करती हैं, बस ये छोड़ दें जी कि मैंने ठीक कैसे होना है, सिर्फ मुझे ये बताएं कि मुझ पर जादू किया किसने है। मैंने कहा हद हो गई मेरा पुत्र, क्या हो गया? जिसने भी किया है, तुम इस बात को छोड़ो, अपने मसले को हल करो और अपना काम करो। लेकिन नफ्स है ना, शैतान, जैसे ही अब हमें अल्लाह जल्ले शानो ने अपने करम और फजल से इस दुनिया में भेजा है, तो उसने भी जब इजाज़त मांगी थी तो उसको मैनूवर करने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए थी ना। उसको फिर वेपन दिया गया नफ्स का। अब नफ्स हमारे अंदर कैसे जनाब सारा कुछ करता है? नफ्स करता है हमारी सोचों के ज़रिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था ना कि हमारा स्टीयरिंग व्हील ये सोचें बन जाती हैं, हमारा जिस्म उधर कोई चल पड़ता है जहाँ ये सोचें ले जाती हैं। तो बस फिर आहिस्ता 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 ये नफ्स ऐसा जाल बुनता है कि दिल की धड़कन कहीं गुम हो जाती है। अगर मैं खामोशी से, बिल्कुल जैसे सैयद बाबाजान सरकार ने हुक्म दिया, दिल की धड़कन से कुरान पाक सुनूं, सूरत अल रहमान सुनूं, तो मजाल है कि शैतान कोई भी असर मुझ पर कर जाए। लेकिन पहले अपने आप को उस रब के सामने अल्लाह जल्ले शानहू के रूबरू महसूस तो करूं। छोटे छोटे सिपाहियों से, कोई भी ऑफिसर कहीं गली मोहल्ले का या इवन सिटी का, किसी से कोई बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम कितने ज़रा सिक्योर फील करते हैं कि हाँ हाँ अब बात हो गई है जी, अब मसले का हल निकल आएगा। या कोई छोटा बच्चा होता है तो कैसे घर में आके अपनी अम्मा अब्बा को कोई बात बता देता है कि बाहर ये कर दिया है, और कितना सिक्योर फील करता है कि बस अब अम्मा मसला हल कर लेंगी। कभी ये सोचा कि अगर मैं सुप्रीम पावर से ये बात कर लूँ, अल्लाह जल्ले शानहू से ही ये बात कर लूँ, तो फिर क्या होगा? मैं ये जो हर छोटी सारी बात को लेकर ठक से फ़ोन, अम्मा ये हो गया, सासू माँ ने आज ये कर दिया, नंदों ने आज ये कर दिया, देवरानी जेठानी आज घर में ये हो गया, तो क्यों ना सबसे पहले उस रब से ही बात कर लूँ? क्या ख्याल है? मैं अगर मुसलमान हूँ तो फिर अपने होने का मकसद ज़रूर देखूँ कि मुझे उस मालिक ने क्यों भेजा। ठीक है ना? हर काकी सोनी अपनी अपनी जगह पर यकीनन मुकम्मल इंसान है, सिर्फ़ और सिर्फ पहचानने की देर है। हमने अपने बच्चों की तरबियत करके इस इस्लाम को, इस मुआशरे को खूबसूरत करना था, इस्लाम अगली नस्लों तक ट्रांसफ़र करना था, तरबियत करना, यही हमारा काम था। हमने सारा कुछ किया, जादू किए भी, जादू करवाए भी, जादू के तोड़ भी करवाए, अपने अपने बड़े बड़े महल भी बनवाए, अपने ऊपर लेबल्स भी लगवाए, मैं सुन्नी, मैं शिया, मैं पता नहीं क्या क्या कुछ। अगर नहीं किया तो अपनी औलाद की तरबियत नहीं की। वेरी वेरी सॉरी टू से। इसीलिए पूरा मुआशरा ऐसा है। हम ये कहते हैं ना बाहर ये हो गया, बाहर कुछ नहीं हो गया। हमारे अंदर जब एक ईंट वो गलत लगती है ना किसी भी बिल्डिंग की, तो सोचो कि बिल्डिंग वो कैसी लगती है, गड़बड़ होती है ना, पूरी फाउंडेशन ख़राब हो जाती है। और यहाँ तो हर ईंट ही खैर से सारी काकियाँ ही मेरे जैसी भरी पड़ी हैं। इसलिए अपने आप को पहचाने, ठीक है ना? इंसान कायनाते असगर है, ये हदीस पाक है, हुजूर पुरनूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसान कायनाते असगर है। बस इस कायनाते असगर को ही ज़रा ठीक रखना है, अपने नफ्स को पहचान कर उस रब की पहचान करनी है।
कुरान पाक, क्योंकि मुझे सारी फिर कहती हैं जी कुरान पाक में लिखा हुआ है। जी कुरान पाक में ही लिखा हुआ है कि नफ्से मुतमइन्ना तुम जन्नत में चली जाओ। तो हम हैं नफ्से मुतमइन्ना? मैं नहीं हूँ कम अज़ कम। मेरी तो जनाब इतनी लंबी लिस्ट है, सुकून नाम की तो कहीं चीज़ ही नहीं है। अगर नफ्स कंट्रोल में होता ना तो अंदर सुकून होता, अंदर मोहब्बत होती, अंदर रहमत होती। और जो आखिरी शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद जहाद अकबर है। सोचो ज़रा, जब ग़ज़वा तबूक से आप शहनशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे तो साथ सहाबाए कराम थे, उस वक्त आपने क्या फ़रमाया था? अब हम छोटे जहाद से बड़े जहाद में दाखिल हुए। बड़ा जहाद, जब सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा कि बड़ा जहाद, तो आप शहनशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद। ये इतनी बड़ी बात है, इसी को टेम करना था। मार तो हम सकते नहीं हैं, जाहिर है ज़िंदगी उसको मिली है, शैतान की जितनी ज़िंदगी है नफ्स ने उसके साथ चलना है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसको टेम करना था। और उसके लिए अभी तक हो सकता है और 200-300 साल बाद कोई और अल्लाह का वली आए, किसी और सूरत पर रिसर्च कर दे। अभी तक हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सूरत अल रहमान और ये रिसर्च कलंदर पाक बाबा जान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह काकियाँ वाली सरकार की सैयद बाबा जान सरकार हसीन के सीने के साथ हमारे पास मौजूद है। उनके सीने की ये रोशनी, ये मोहब्बत जो मेरे जैसी पता नहीं कितनी काकियों को बदल रही है। कोशिश कर रही हूँ मैं तो, बाकी सब तो खैर हैं ही बहुत हसीन अपनी अपनी जगह पर। हम कोशिश करें सब अपना काम करने की। सबसे पहले सारी बीमारियों को अपने अंदर से ख़त्म करना है। ये मैंने सारी बात अपनी बीमारियों वाली भी और ये काले जादू वाली भी लंबी लिस्ट इस वजह से सुनाई है क्योंकि काकियाँ कुछ ऐसी हैं, 7 डेज सुना, 8वें दिन कहेंगी जी वो चुड़ैलें वो तो रात को फिर आ गई थी जी। मैंने कहा देखो, मैंने हॉस्पिटल में सुनी थी वो, और सुनने के बाद तकरीबन मैं 18 मंथ्स आई वॉज स्टिल ऑन बेड। लेकिन वो 18 मंथ्स मेरे अंदर सिर्फ एक ख्याल रहता था कि मैंने सुन ली है ना, और वो मालिक है, और वो मालिक मेरे दिल की धड़कन में है, वो संभालेगा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी सोचने की। ये नहीं हुआ था कि 8वें दिन मैं उठ के तो खड़ी हो गई हूँ। ज़रा अल्लाह जल्ले शानहू पर एतबार और भरोसा करके तो देखो। सारी दुनिया के पीछे हम भागते हैं, बस एक नहीं चाहते तो रब कोई नहीं चाहते, ठीक है ना। खौफे खुदा में रहना ऐन इबादत है। यही कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बेटा हर लम्हा उस रब के खौफ में गुजारें। हम हर लम्हा पता नहीं कहाँ कहाँ के खौफ पाले रखते हैं, नहीं दिल में एक ख्याल आता तो उस रब का ही नहीं आता। हर सांस का हिसाब देना, ठीक है ना। तो बस अपनी सांसों की फ़िक्र करनी है। एक दिन की 24,000 सांसें ऐसे ही नहीं मिली, आखिर पूछा जाएगा हमसे कि क्या करके आए हो पीछे। तो बस जिसका जो भी मसला है सूरत अल रहमान वो सुने। मैंने आपको अपने मसाइल की लिस्ट बता दी। अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला है, तो फिर सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 दफ़ा सुनेंगे। इसको हम डाउनलोड करेंगे www.alrahman.com। अब इस वेबसाइट पर जनाब मुझे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, वाई ओनली दिस वेबसाइट। मेरा पुत्र, जहाँ से आपका दिल करता है आप वहाँ से ले लो। इस वेबसाइट को मैं इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि एक तो यहाँ से फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर इस मेथड का, इस प्रोसेस का, इस मैसेज का पूरे का पूरा ओरिजिन अवेलेबल है। आप वहाँ से रीड कर सकते हैं कि ये बात कहाँ से आई, कलंदर पाक बाबा जान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो कौन हैं, सैयद बाबा जान सरकार कौन है, कहाँ से ये मैसेज ओरिजिन हुआ, ठीक है ना। क्योंकि सारे कहते हैं जी कि ये कहाँ से नई बात आ गई, तो ये नई बात नहीं है, कुरान 1490 साल पहले से मौजूद है, ठीक है ना। तो ज़रा अपने नफ्स को कंट्रोल करें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले। ये वेबसाइट सिर्फ इसलिए कह रही हूँ। दूसरी बात या दूसरी वो चीज़ है कि जी ऐप भी इसकी है, दी अल्टीमेट रेमेडी। वो ऐप आप डाउनलोड कर लें, वो ऐप भी फ्री है।
अब ये ऐप मैं क्यों रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये भी जनाब क्वेश्चन था, मैं सिर्फ इसी वजह से आज अपने प्रोफाइल पर भी लॉगिन हुई कि ये आपके क्वेश्चन ज़रा क्लियर हो जाएं। वो ऐप भी फ्री है, मैं इसलिए उसमें रेकमेंड करती हूँ क्योंकि एक तो फ्री है, उसमें एड्स नहीं है, और बहुत सारी और ऐप्स या कुछ भी है, एक तो उनमें एड्स हैं, दूसरी ये कि उन्होंने सूरत अल रहमान को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। वो 17 मिनट्स वाली नहीं है, ये 20 मिनट्स और कुछ सेकंड्स की सूरत है, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, और यही सुननी है। ठीक हो गई बात। और फिर ये चीज़ कि जी हमने सिर्फ इन्हीं कारी साहब की क्यों सुननी है, देखे ना जी, ये तो 20 मिनट्स लगा देते हैं, मैं तो सुनूंगी किसी और, पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो खैर नाम भी नहीं आते, किसी और कारी साहब की, वो तो 5-6 मिनट्स में वो तो पढ़ देते हैं, तो वही सुन लूँगी ना, साथ साथ काम कर रही हूँ। तो उनका जवाब मैं फिर से दे दूँ, कुरान पाक हम इंसानों के लिए, दीवारों के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो खुदा के लिए ज़रा अपने दिमागों को थोड़ा सा ना खुद एक्सप्लोर करें कि कहाँ फजूलियात अंदर भरी जा रही हैं। कुरान पाक इंसानों के लिए, दिलों की धड़कन के लिए, आपने खुद सुनना है। कुरान पाक में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जब हमारा कलाम पढ़ा जाए तो उसको खामोशी और तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। हमारे आखिरी शहंशाह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक सुनना पसंद था। कई दफ़ा ऐसे होता था कि सहाबाए कराम वो बैठकर एक दूसरे को कुरान पाक सुना रहे होते थे, और आप शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे और ख़ामोशी से आकर उनके साथ बैठ जाते थे। पता भी नहीं चलता था कि इनमें हमारे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ठीक है ना। इतना उनको कुरान पाक सुनना पसंद था। और फिर ये जी कि सूरत अल रहमान ही क्यों, इसलिए कि जो आपको मेडिसिन दी गई है ना खुदा के लिए, उसको वैसे ही लें। क्यों का जवाब तो आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगा जो मैंने आपको बता दी, alrahman.com। बाकी बात ये रह गई कि आप शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से आपने फरमाया कि अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ कर सुनाए, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि शहंशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक मैं पढ़कर सुनाऊं, ये तो आपके सीने का नूर है। तो आपने फरमाया हाँ अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनना पसंद है, ठीक है। और फिर जब अभी इस्लाम सिर्फ 4 दीवारी तक अंदर एक कमरे तक महदूद था, जब ये तय किया गया कि अब इसको बाहर पूरी दुनिया में फैलाना है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फ़र्स्ट टाइम वो ऐसे बाहर निकले कमरे से और आकर बाज़ार में सूरत अल रहमान की तिलावत शुरू कर दी। ठीक हो गई बात। तो सूरत अल रहमान जो आपको कहा गया है उतना ही करना है। बाकी अगर आपका दिल करता है किसी और कारी साहब की आवाज़ में सुननी है जी, कोई और सूरत सुननी है, आप बिल्कुल अपने घर में बैठकर ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखें। जब भी आपका दिल करे आप 2 या 3 डिफरेंट कारी साहबान उनकी सूरत उनकी आवाज़ में सुने, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या बेहतर है और वो कैसे दिल पर असर करती है। जो दर्द, जो मोहब्बत और जो लय इन कारी साहब की आवाज़ में है वो और किसी में नहीं है। आप खुद अपनी अपनी जगह पर ये तजर्बा करके देख लें, ठीक है ना। क्योंकि इसने, ऐसे सुनने ने, इस पूरे मेथड ने मेरी ज़िंदगी बदली। मैं तो सिर्फ अपनी बात आपको बता रही हूँ, आप सबको पता है माशाल्लाह मेरी ड्रीमर्स बहनें कि मैं कोई आलिमा, कोई स्कॉलर नहीं हूँ। जैसे मुझ पर इफ़ेक्ट हुआ मैं अपना इफ़ेक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक हो गई ये बात। अब फिर कहती हैं, एक और क्वेश्चन होता है जी बंद आँखों से क्यों? बंद आँखों से इसलिए कि फोकस रहे, ठीक है। चलें जी, अगर खुदा ना खास्ता स्वेयर प्रॉब्लम है तो दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 दफ़ा सुनेंगी। अगर कम मसला है तो सुबह और शाम सुनेंगी। और अगर आप ठीक हैं लेकिन सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी है या कोई भी फैमिली इशू है, ऑफिस से रिलेटेड कोई छोटी मोटी बात है, तो फिर वंस अ डे, ओनली फॉर 7 डेज। अब ये ओनली मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओनली फॉर 7 डेज। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है
तो फिर आप 7 डेज सुनने के बाद 1 डे का गैप देंगे, अगेन 7 डेज सुनेंगे, फिर 1 डे गैप देंगे एंड अगेन 7 डेज सुनेंगे. टोटल 21 डेज, नॉट मोर देन दैट. ठीक हो गई ये बात. मैंने तो सिर्फ 7 डेज सुनी, पहले जब 2003 में सुनी थी फिर भी 7 डेज सुनी थी, और अब जब 2017 में सुनी थी अगेन मैंने सिर्फ 7 डेज ही सुनी थी. अल्लाह पाक ने अपना करम और फजल किया. ये हो गई बात. क्योंकि मुझे जनाब कल ही ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन मिला था खैर से, कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कि हमने अपने कोई उन्होंने स्टेशंस बनाए हुए हैं, कुछ पता नहीं कोई स्पेशल प्लेसेस, वहाँ पर वो कोर्सेज करवाते हैं 21 डेज़ के. उनसे मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, मुझे किसी के बारे में पता नहीं है. मैं सिर्फ अपनी बात आपको बता रही हूँ, और ये 100% फ्री है. क्योंकि बहुत सारी काकियों ने जनाब मेरे मैसेज के नीचे आके किया था रिप्लाई कि जी मैंने किसी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि जी 20,000 एवरी मंथ का दे तो फिर हम ये बात आपसे करेंगे. मेरा बेटा, सूरत अल रहमान के साथ किसी भी किस्म की कोई मनी वाली कोई भी सिचुएशन एडिड नहीं है. कोई बंदा आपसे एक पैनी भी नहीं ले रहा है. ना मैं ले रही हूँ, ना ही सैयद बाबा जान सरकार किसी से कोई पैसे ले रहे हैं. जो भी कोई इस बात में चार्जेस ले रहा है, समझ जाओ कि उसका कुरान पाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक हो गई बात. हर कोई अपनी मर्जी से जैसे जिसका दिल करता है, यकीनन वो भी अपनी तरफ से बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन मेरा उसके साथ किसी के साथ कोई लिंक नहीं है. ठीक है बात. मैं तो अपने जो भी मसले मसाइल, ढेर सारी लिस्ट, बस वही शेयर करती हूँ सबके साथ. हाँ जी. अब तरीका जब आपने ऑन करनी है, उससे पहले आपने जनाब ये आधा गिलास पानी का अपने पास रख लेना है. फिर आपने सूरत ऑन करनी है, खामोशी के साथ, दिल की धड़कन से, पूरी मोहब्बत के साथ, यकसुई के साथ अपने आप को अल्लाह जल्ले शानहू के रूबरू महसूस करते हुए सूरत सुननी है. बंद आँखों के साथ 20 मिनट्स और फ्यू सेकंड्स की सूरत है. सुनने के बाद अपनी आंखें खोलनी है. ठीक हो गई बात. आंखें खोल ली, उसके बाद जो आधा गिलास पानी पास रखा है वो पानी हाथ में पकड़ना है अगेन, और फिर आंखें बंद कर लेनी है और दिल की धड़कन से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत के साथ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, या जैसे एक बच्चा पूरे लाड से अपनी माँ को बुलाता है. इतनी मोहब्बत से उस रब को बुलाकर और 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है. ठीक हो गई बात. हर दफ़ा जब भी सूरत अल रहमान सुनेंगे उसके बाद पानी ऐसे ज़रूर पिएंगे. ये तो हो गया जनाब 7 डेज़ का आपका ट्रीटमेंट. 7 डेज़ ख़त्म हो गए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप पानी इसी तरीके से पीते रहेंगे. ठीक है. पानी पीना नहीं छोड़ना. जब भी आप पानी पिएं, दिन में 8 दफ़ा 10 दफ़ा जब भी दिल करे ऐसे ही आधा गिलास पानी लें, खामोशी से साइड पर होकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और दिल की धड़कन से 3 दफ़ा कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह. 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलें. ठीक है. पानी पीना नहीं छोड़ना. आई एम अगेन रिपीटिंग. फिर काकियाँ ये करती हैं जी हमने जितने दिन सुनी उतने दिन पीते रहे, अब छोड़ दिया. पानी पीना नहीं छोड़ना है, वो आपने पीते रहना है. और कुछ जी के हम तो पिछले कोई 1-1 साल से जी ये सुन रही हैं. मेरा बेटा, ये 1 साल के लिए नहीं है. इट्स ओनली फॉर 7 डेज़. अब आप खुद से ही, मुझे नहीं पता किसने आपको 1 साल का कहा है, ये 1 साल के लिए ट्रीटमेंट नहीं है. कीमोथेरेपी, आप खुद सोचो, कीमोथेरेपी किस लिए दी जाती है? कैंसर के लिए. सिर्फ आम हेडेक के लिए, या कहीं जी शोल्डर में पेन है और कहीं कुछ हो गया छोटा मोटा, तो उसके लिए तो कीमोथेरेपी नहीं होती ना. तो बस फिर जब दूसरी दवाइयों पर इतनी रिसर्च कर लेते हो ना, तो इस पर भी थोड़ा सा सोचो समझो. कुरान पाक है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है. ठीक है. ओनली फॉर 7 डेज़ बस. उसके बाद हम सिर्फ पानी पीते रहेंगे. पानी पीना नहीं छोड़ना. ये हो गया पूरा मैसेज. अब हम सारे मिलकर एक दफ़ा दुआ कर लेते हैं. दुआ का तरीका अभी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ. उसके बाद भी जिसका जब भी दिल करे वो इस तरीके से दुआ मांग सकता है. लेकिन हर दफ़ा पानी पीने के साथ इस तरह दुआ मांगना ज़रूरी नहीं है. ये उसके साथ अटैच भी नहीं है.
पानी जब भी पीना है वो इसी तरीके से पीना है जैसे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन दुआ जब भी आपका दिल करे, आप परेशान हो रहे हैं, कुछ भी जहन में कोई चीज़ बग कर रही है, तो खुदा के लिए इधर उधर मशवरे करने की बजाय ना फ़ौरन इस तरीके से बैठ जाएं, उस रब से खुद बात कर लें। दुआ का तरीका ये है कि अपनी आंखें अभी हम सारे करेंगे बंद, ठीक है। दिल की धड़कन से पूरी मोहब्बत से 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह जल्ले शानों को बुलाकर 3 दफ़ा और फिर दिल की धड़कन से ही दुआ मांगनी है। जो भी दुआ मांगनी है दिल से मांगनी है, मुंह से कुछ नहीं कहना, और बंद आंखों के साथ। जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, सब लोग आंखें बंद करें अपनी। चलें जी, आंखें खोलें। अब पानी हाफ ग्लास, जिसके पास नहीं है वो फिर जैसे ही सेशन मेरा ख़त्म होगा तो आप लोग ले लेना, ठीक है। हाफ ग्लास वाटर। अगेन अपनी आइज़ क्लोज करनी है, दिल की धड़कन से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल से पूरी मोहब्बत से अल्लाह जल्ले शानों को बुलाकर 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है, ठीक है। चलें जी, पानी पी लें। ठीक है जी, दुआ की कबूलियत का भी आपको मैं बता देती हूँ। अगर पानी का टेस्ट मीठा हो गया है, आपको खुशबू आ रही है, पसीना आ गया है, गर्मी लग रही है, आंखों में आंसू आ गए हैं या जलजला महसूस हो रहा है, तो समझ जाना कि दुआ कबूल हो गई। लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा है तो ये नहीं सोचना कि किसी ने जादू किया हुआ है, ठीक है ना। ये सोचना है कि हमारे अंदर नफ़रत है, और हकीकत भी यही है कि फिर हमने अपनी उस नफ़रत को कंट्रोल करना है, रब के फ़ैसलों पर राज़ी होना है। इंशाअल्लाह ताला काकियाँ सोनिया जब 7 डेज़ पूरे ये ट्रीटमेंट कर लेंगी, सूरत अल रहमान सुन लेगी, तो यकीन करो 100% कोई जादू नहीं रहेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। मैं आपके सामने हूँ इस बात का सबूत कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जादू नहीं है। करके देखें, अपने घरों को जन्नत बनाने का ये प्रोसेस शुरू करें। ओन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुदा के लिए, ठीक है ना। चले जी, मैं अब आप लोगों के क्वेश्चन से एक दफ़ा देख लूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन्स 2 आज रखे थे, 2 जगह से मैं लॉगिन हुई हुई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अनिल माँ, मैं स्टार्ट करूँगी सुन। ओए, अभी तक नहीं स्टार्ट किया, शाबाश है तुम्हारे। काकी सोनी प्लीज़ जल्दी स्टार्ट करें। माशाल्लाह आपके इतने हसीन छोटे छोटे सारे जनाब हमारे शहजादे, उनको पानी पिलाना शुरू करें। बच्चे घरों में जितने भी हैं 12 साल से बड़े, उनको इस तरीके से सूरत अल रहमान ज़रूर सुनवाएं दिन में 1 दफ़ा। जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से छोटे, उनको नहीं सुनवानी। ये दवाई है, ठीक है ना। और मेडिसन हमेशा हाइट और वेट के हिसाब से होती है, क्योंकि फिर आगे से जनाब काकियाँ सोनिया ठग से जवाब देती हैं कि जी कुरान है ना, जितना हमारा हक है उतना ही बच्चों का हक है। बिल्कुल उतना ही हक है।
تو بہتر ہے کہ بچوں کو آپ قرآن پاک پڑھنا بتائیں، ان کو اس کو ایکسپلور کرنا بتائیں، اس پر حکمت کرنا بتائیں، اس میں وہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ دوائی نہیں دینی، یہ میڈیسن ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ کے انیلما چھوٹے بچے ہیں، ان کو میرا بیٹا ایسے ہی صرف پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اور کویسچنس جی؟ واچنگ ہی آ رہا ہے، یہ سب واچنگ ہی آ رہا ہے. تھینک یو ثنا، تھینک یو. وعلیکم السلام. اوئے ہوئے، واہ جی واہ، بڑے بڑے لوگ آج تو، کیا بات ہے. یہ سب واچنگ ہی آ رہا ہے، مجھے کویسچنس کوئی نہیں ملے. ٹھیک ہے، چلو اگر پھر بھی ایز یوزول کویسچن جناب رہ گیا کسی کا کوئی بھی، تو پھر آپ لوگ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. میں اپنے پروفائل پہ آج فرسٹ ٹائم لاگ ان ہوئی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہو سکتی ہوں یا نہیں ہو سکتی، کسی کو نہیں میں نے بتایا تھا. تو چلو اب نیکسٹ ٹائم دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. پہلے نوٹیفیکیشن لگا دوں گی کہ میں اپنے پروفائل سے لاگ ان ہو رہی ہوں، کیونکہ بہت آپ لوگ کرتے ہیں جی کہ جو لوگ میرے چینل پر دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ فالو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چینل پر میں نیو سیشنز نہیں لگا رہی. میں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اپلوڈ کروں گی، کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے آن لائن کلاسز تھیں، گھر سے سارے پڑھ رہے تھے، تو میں کافی بزی تھی، آفس بھی ہوتا ہے میرا، تھوڑا سا معاف کر دو پلیز. تو اب تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، بچوں کو سمر ویکیشنز ہو گئی ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جیسے ہی اس پر ٹائم ملتا ہے تو ضرور لگاؤں گی. تو اسی وجہ سے مجھے اسپیشلی آج آنا پڑا اس پر کہ دیکھوں کہ اگر یہاں پر میں آ سکتی ہوں تو چلو سب کو ایک ہی دفعہ پھر بات ہو سکے سب سے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب میرا خیال ہے کہ اور تو کوئی کویسچن نہیں ہے کسی کا بھی. چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر مالک نے توفیق دی، اجازت دی، اپنی محبت کے ساتھ وہ انرجی دی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہنسیں، مسکرائیں، کاکیاں سونیاں اپنے گھروں کو جنت بنائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اوکے انیلما، تھینک یو سو مچ میری جان. اللہ حافظ.